A major incident has been reported from Bahraich district in Uttar Pradesh, where firing occurred during a Durga idol immersion procession, followed by heavy stone pelting. One young man has lost his life and several others were reported injured. The violence reportedly began when the procession passed by a house belonging to a different community. After the incident, a large police force, including PAC personnel, have been deployed to the area. The incident took place on Sunday in Maharajganj when a Durga Puja immersion procession was passing in front of a house. Stones were thrown and soon after gunfire erupted, killing a young man. The situation escalated, leading to chaos. The immersion was stopped and Ram Gopal Mishra, a resident of Rehua Mansoor village, was injured in the firing and was taken to the district hospital in critical condition. Unfortunately, he passed away during treatment at Bahraich Medical College. After hearing this, people in Maharajganj Bazaar started vandalizing vehicles and setting fire to several houses, with 4 homes burned down. A heavy police presence has arrived at the scene, but locals have surrounded the area, preventing further movement. मेरा नाम वैभव मिश्रा है। आज अब जिला अस्पताल है, क्या हुआ है? अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई। हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ। काली माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस, हरदी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है, तो बुलाया जाए। तो लड़के ने आके, हमारे बड़े भाई राम गोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हरदी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको। और पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी कभी पूरी थाना गायब हो जाए पूरा, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। संजीव कुमार मिश्रा। क्या हुआ है? मूर्तियाँ पहुँची है महाराजगंज के बाहर चौराहे पर। वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बढ़ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग। किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है, पूरी थाना है। क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों को सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय हम लोग शादी हुई है, 4 महीने पहले शादी हुई है। उसका कौन जिम्मेदार है? Now a video has surfaced from Mahasi riot showing the moments leading up to the tragic death of Ram Gopal Mishra, who was shot. In the video, the victim can be seen climbing onto a roof using a tin sheet where he removes a green flag and replaces it with a saffron flag. Following this, he is seen throwing stones at a nearby shop. During the chaos, the man was shot and later succumbed to his injuries. The video has sparked outrage, with many questioning the delay in police intervention. Locals claim that if authorities had acted promptly, this tragic incident could have been avoided. Following the violence, Chief Minister Yogi Adityanath has taken prompt action. He has received updates on the situation from the DGP and issued important directives. If necessary, senior officials will be dispatched to Bahraich with additional officers potentially coming from Lucknow. BJP spokesperson Manish Shukla made a strong statement regarding the incident, condemning the attack on devotees during the immersion procession, which resulted in one death. CM Yogi has ordered strict action and cases have been filed against the main accused and several others involved in the violence. मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान
उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने बहुसंख्यकों की आस्था पर हमला किया है, शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस पर हमला किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एक भी दोषी, एक भी आरोपी बचेगा नहीं। Arson has erupted in Bahraich as vehicles are being torched by an unruly mob. The crowd has even set fire to the Lucknow Seva Hospital. Incidents of arson continue to rise, with rioters targeting shops and blocking highways. Despite police presence, officers and senior officials, they have left the scene, leaving the roads dominated by rioters. Although PAC forces have arrived, their numbers are insufficient to control the situation, and they are struggling to contain the furious mob. The situation remains tense, with the violence spreading rapidly. Violence intensified in Bahraich following the funeral of Gopal Mishra. A large crowd turned violent, setting multiple vehicles on fire inside a Hero Honda showroom. Rioters armed with sticks are roaming the streets, causing further unrest. In the wake of escalating violence in Bahraich, SP Vrinda Shukla made a public announcement via loudspeaker, suspending Hardi police station in charge and Mahasi outpost in charge. The swift action comes as tensions remain high, with law enforcement under scrutiny for their handling of the situation. This decisive move aims to restore order and accountability amid the ongoing unrest. मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तथा उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया हिंदू पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पर तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है।
और हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। साथ ही जो भी उपद्रवी हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया है, पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरंभ हो जाएगी। इसमें आगे महाजी महाराजगंज के मामले में कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज है, नामजद और कितनी अज्ञात? जी, अभी एक सलमान आइडेंटिफाइड है जिनका दुकान था घर थी जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहां पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया। पूरे जिले में विसर्जन रोक दिया गया था, अब क्या स्थिति है? अब सभी जगह सामान्य स्थिति है, सभी जगह विसर्जन सकुशल चल रहा है। For more details on this incident, we will now connect to our correspondent from Uttar Pradesh, Mr. Ashrar. Hello, Ashrar. हेलो। अशरर, अभी वहाँ पे हालात कैसे हैं? बहराइच में हालात कैसी है और क्या पुलिस अभी इस स्थिति को काबू में ला पाई है? जी बिल्कुल चैंग, देखिए जिस तरह से मूर्ति विसर्जन को लेकर के पूर्ण संपन्न कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, तो उसमें पूरे प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन बहराइच प्रशासन की ओर से पूरा जो तामझाम किया गया था वो कल शाम गोलीबारी और पथराव के बाद पूरी तरीके से धाराशायी हो गया, क्योंकि विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद भयंकर बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि बहराइच के थाना हरदी में रेहुआ मसूर गांव है, जहां पे राम गोपाल मिश्रा जिसकी उम्र 22 वर्ष है, वो कल शाम करीब 6 बजे विसर्जन के जुलूस में प्रतिमा के आगे चल रहा था और जब जुलूस महाराजगंज बाजार में अब्दुल हमीद जिसको आरोपी बताया गया उसके घर के पास से गुजर रहा था, तभी नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर के थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और आरोप है कि इस दौरान छतों पे से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इसी बीच गोलाबारी हो गई और राम गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बहराइच के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया और राम गोपाल की मौत के बाद महाराजगंज में बवाल अधिक हो गया, उग्र हो गया। आक्रोशित जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अब्दुल हमीद के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ करी और उसमें आग प्रक्रिया में जिले भर में विसर्जन को रोक दिया गया। 18 गांव से बहराइच के ऐसे जहां का विसर्जन होना था, तो इसके बाद जब स्थिति इस तरीके की रही तो विसर्जन को भी रोक दिया गया। जिस दौरान महाराजगंज में ये घटना आई तो शहर में देखने को मिली, तब मृतक राम गोपाल के परिजन समेत जो आक्रोशित सैकड़ों की तादाद में भीड़ थी, उसने शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने रख दिया और प्रदर्शन शुरू करके जो आरोपित हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनके ऊपर सख्त सख्त एक्शन की मांग करने लगे, नारेबाजी करने लगे। इस दौरान जिला प्रशासन ने बीजेपी के मतई से विधायक जो थे क्षेत्र के, उनको भी साथ में लेकर के स्थिति को संभालने की कोशिश करी, लेकिन उनको भी आलोचनाओं का सामना और पब्लिक की नाराजगी झेलनी पड़ी। इस दौरान लाठी डंडे लेकर के लोग जो है प्रदर्शन करते नजर आए। काफी एक मान मनोवल के बाद जब मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था, तब प्रदर्शनकारी और भड़क गए और जो मर्चरी वैन थी उस पर डंडे से मारना, काफी मशक्कत के बाद जब पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया, तब फिर उसके बाद डंडे से लेकर के जो तमाम चीजें थी जिससे भी उग्र हो सकती थी भीड़, उसको लेकर के कई दुकानों में, एक होंडा का शोरूम, वहां पे जाकर के मोटरसाइकिल, बाइक दुकानों में आग लगा दी गई। साथ ही साथ जो बहराइच लखनऊ हॉस्पिटल है उसमें भी वहां पे जाकर के उसके गेट पे भी आग लगाई गई। तो फिलहाल वहां पे जो पीएससी बल को तैनात किया गया था उसकी भी संख्या कम होने के कारण पीएससी भी अंदर जाने से डर रही थी। कल देर रात तकरीबन 3 बजे तक सड़कों पर एडीजी समेत, एडीजी जोन समेत जो आला अफसर थे बहराइच के, वो लोग वहां पे थे। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया तो आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, जो कि एसटीएफ के भी चीफ हैं, वो मौके पर अफसर माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, और कई खिताब भी उनके पास हैं, वो वहां पे पहुंचे और हाथ में पिस्टल लेकर के सड़कों पे उन्होंने किसी तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको रोका है और रोक करके अभी किसी तरीके से स्थिति को सामान करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलमेट जैकेट पहन करके डीएम और एसपी सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो फिलहाल अभी हिंसक की जो स्थिति है इस जिले की, वो काफी भयावह हो चुकी है, क्योंकि उग्र हो रही है धीरे धीरे भीड़। और जिस दौरान ये गोलीबारी की घटना हुई, एक तरफ राम गोपाल मिश्रा जो मृतक
समर्थक है उसको ऊपर गोली चली, और दूसरी तरफ जो आरोप लग रहा था हमीद, जिनका नाम बताया जा रहा है, जिनको FIR में भी आरोपी बनाया गया है, उनके घर में आगजनी हो गई, पत्थरबाजी करने लगे। तो जिस तरीके से उपद्रवियों ने एक साथ एक तरफ गोलीबारी हुई और एक तरफ ये हुआ, ये अपने आप में जरूर कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन को लेकर के सीएम भी सजग थे, उन्होंने पहले से निर्देश दे रखा था, और अमूमन इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो पुलिस प्रशासन पहले से तैयारी रखता है। लेकिन इतने 18 गांव की एक क्षेत्र से विसर्जन के लिए जो है जुलूस निकल रहा था, उसमें पुलिस क्या कर रही थी, इन तमाम चीजों पे जरूर पुलिस घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी किसी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति को सामान किया जाए। इसमें FIR में वीडियो में जो दंगइये हैं उनसे पहचान करी जा रही है, और लगभग 30 लोगों को अभी पुलिस हिरासत में ले चुकी है और उनसे पूछताछ कर रही है। और अभी भी ये देखा जा रहा है कि वीडियो में कौन कौन सामने आ रहा था, कौन कौन दिख रहा है जिसने आगजनी की घटना को अंजाम दिया, और साथ साथ दंगा फैलाने में कौन कौन योगदान, इन तमाम चीजों पर सारे वीडियोस को खंगाल के पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी अशरर, ऐसे बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी कहीं पे कुछ सूत्रों के अनुसार ऐसा सुनने को आ रहा है कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब चुनाव से पहले भाजपा ये सब को सिचुएशन को पोलराइज करने की प्रयास में है। क्या हम इसको इस नज़र से देख सकते हैं, या ये सिर्फ एक इंसिडेंट के हिसाब से ही देखना चाहिए इस घटना को? जी देखिए, फिलहाल अभी ये कुछ कह पाना मुश्किल है कि ये राजनीतिक चीज है या फिर कोई एक इंसिडेंट, लेकिन हालांकि अभी जो सामने है ये एक घटना है जो कि होने की उम्मीद और चांसेस हमेशा रहते के लिए पुलिस प्रशासन को पहले से निर्देश दिया जाता है, सख्ती करी जाती है, जगह जगह पर चौराहों पर पुलिस की तैनाती करी जाती है, जिस रूट से निकलता है जुलूस उस रूट पर PSC को भी तैनात किया जाता है कि इनकेस अगर कोई अनहोनी हो, कोई घटना घटित हो तो उसे किया जाए। लेकिन इस तरह ये नहीं हुआ। उसके बाद विपक्षी दल ने भी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी और इस मामले को राजनीतिक मोह दिया जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, और अगर विपक्ष की बात करी जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट हुआ है। हालांकि अभी कोई बड़ा प्रतिनिधि मंडल विपक्षी दल का मिलने नहीं गया है, ना ही बहराइच गया है, ना मृतक के परिवार के पास गया है, ना ही इस घटना में जो आरोपित बनाए जा रहे हैं उनके पास गया है। तो ये महज एक आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, क्योंकि घटना हो चुकी है और घटना की अभी जांच करी जा रही है। पुलिस किसी तरीके से प्रशासन प्रयास कर रहा है कि स्थिति को सामान किया जाए। तो सबसे पहले जो सरकार के और पुलिस की कोशिश है वो यही है कि सिचुएशन को पहले अंडर कंट्रोल किया जाए, उसके बाद इन तमाम चीजों को देखा जाएगा कि घटना कैसे घटित हुई, और जो राजनीतिक पार्टियां इस पे, विपक्षी दल जो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, उन चीजों पर उसके बाद नजर डाला जाएगा। अभी ये बताया जा रहा है कि मृतक की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, और इस शादी के बाद रामगोपाल के राम लग गया, क्योंकि 6 महीने पहले शादी हुई थी, अभी हुई, और उसके बाद उसकी पत्नी को इस तरह की चीजों को झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो उसके समर्थक हैं, जो रामगोपाल मृतक के साथी हैं, और जो जुलूस में लोग शामिल थे, और उनके जो गुट था, जो उनके पक्ष के लोग हैं, उनमें ये आक्रोश सबसे ज्यादा है कि एक तो जवान लड़का और ऊपर से इस तरह की घटना में उसकी मौत हो गई। हालांकि एक और वीडियो अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था, जिसमें जो मृतक रामगोपाल मिश्र है वो देखा जा सकता था उसको कि वो एक छत पे जुलूस के दौरान खड़ा होकर के, जहाँ पे हरा झंडा, ग्रीन फ्लैग जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की एक निशानी है, उस फ्लैग को उतार करके उसने वहां पे भगवा फ्लैग लगाया, और जिस दौरान वो झंडे को उतार रहा था उस दौरान वहां पे जो रेलिंग पे बाउंड्री बनी हुई थी छत की, वो भी टूट गई थी, और उसी बीच पत्थरबाजी शुरू हुई और उसके महज 30 मिनट के अंदर उस पर गोली मार दी गई। और इससे पहले 6 महीने पहले रामगोपाल मिश्रा एक और मामले में जेल भी काट चुका है। सारे पहलुओं पर अभी जांच करी जा रही है और देखा जा रहा है, पुलिस अपनी खंगाल रही है बैकग्राउंड सभी लोगों का कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है और कैसे कैसे इसको सामान किया जाए। फिलहाल प्रथम जो प्रयास है पुलिस का, कोशिश है प्रशासन की कि इस को कैसे रोका जाए, क्योंकि हिंसा काफी भड़क चुकी है और अभी भी लोग काफी आक्रोशित हैं। उग्र भीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पुलिस के हाथ पांव पूरी तरीके से फूल चुके हैं। PSC की टुकड़ियां भी वहां पे इतनी कंपेरेबल नहीं है, इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि वहां पे जाकर के लोगों को रोक सके। तो फिलहाल सबसे पहले प्रयास यही किया जा रहा है कि स्थिति को सामान्य किया जाए। जी अशरर, आपके ये सब अपडेट्स के लिए बहुत धन्यवाद, और इस मुद्दे पर, इस घटना पर जितने भी न्यूनतम अपडेट्स, जो भी खबरें आती हैं, हम इसके लिए आपसे जुड़े रहेंगे।